Moving on and calling out our participant, we have Monasij Banerjee. So I am a master's degree student, and horror. I was introduced to horror with the movie Dracula first, right? And then I went on to read a lot of books, be it Dracula, be it Rosemary's Baby, and of course Stephen King. Who hasn't read Stephen King? We all love Stephen King. Of course. And yeah. So after that, I moved on to series The Haunting of Hill House. That is the one I saw a few weeks back. I guess I loved it basically. And what I'm going to share today is fiction, totally fiction. I'm going to try and sort of act it out. I will try since it's an open mic. So here it goes. I call this As Above, So Below. Not like the movie, but let's see. So here it goes. I lay there on the ground, ankle twisted at an awkward angle. I could feel the warm blood as it trickled from behind my ear, caressing my face. My nose was busted. I could smell the dampness of the floor of my humble abode. I could taste the metallic blood. My vision was becoming blurry. I could make out three people rummaging through my belongings. I cried to the heavens for help. I had been devoted to the Almighty all my life, and now I needed Him. I needed Him more than ever. Save me! Save me, Lord! Save me! Shut up, you filthy! Keep quiet! One masked man shouted to the other. The third man kept on rummaging through my belongings, undoubtedly searching for it. I had found it while tilling my land. I was just like any other normal farmer, tilling my land, mixing fertilizers, checking if the crops were healthy or not. It was a blazing day. The sun just, it's a very, very sultry day. That is when I spotted it. It shone, it sort of glinted like sunshine shining off a piece of glass. I approached and I found that the twinkling object was a figurine, a jet black figurine, pretty smooth, but it looked really old, very old. I was intrigued, so I took it to the National Museum, had the curator take a look at it. A week later, I get a call from him. I went there. The curator told me that it belonged to the 5th century AD. Not being educated, I did not know what 5th century meant. I had no idea. But it was obvious from the look on his face. It was really old and perhaps very valuable. We would love if you would be so kind as to loan us this beauty, the curator chirped. He went on and on about the object having great historical value, being, you know, being a great artifact which students could study and learn things from. But my mind was somewhere else. I looked at the figurine. Being a devout Christian, I did not want to give it away. Maybe this was a message from God. The hairs on my neck stood up. There was this eerie feeling in my chest. It's like when you are on a roller coaster and it's hurtling down. It's exhilarating. You are excited as well as afraid at the same time. I stood up. I think I'll hold on to this. Thank you for looking at it though. I stood up, shook his hand. Just as I approached the door, you're making a big mistake, Mr. Smith. People get wind of such valuable artifacts. Who knows what might happen? Stay safe. An ominous reply came from Stephen, the curator. I returned back and kept on pondering about what Stephen might have insinuated. I went to the barn and hid the figurine, jet black, in the darkness, right next to where my goats were. I came back to the house, sat on my dining table, thanked the Lord, and was just about to take the first bite of my dinner when bang! Something hit me, and hit me hard. I was momentarily deaf. The room seemed to spin. My vision got blurred. I tried to stand up, but was thrust back into the chair. I twisted my ankle and fell face first on the ground. You should have taken the offer, Smith, snarled a very familiar voice.
Save me! Save me, Lord! Please save me! I cried, hoping for a divine intervention, hoping that someone from above would hear me, hear my pleas. Someone did hear me, but it was not from above. As above, so below. If I save you, will you do my bidding? A low, heavy voice inquired. I couldn't see, I couldn't feel, neither could I think. Yes, please save me. Just save me. Do you swear? Do you swear upon the blood you have lost? I do. God, please, please just save me. God. A laughter. It echoed in my mind. A laughter that chilled me to the bones, even in that state. Please help me. Please save me. So be it. A part of the roof suddenly collapsed. It came crashing down and bludgeoned two of the perpetrators. The third one was so shocked, he jumped backwards, lost his balance, and fell on the dining table. I tried to lift my head and look at what had happened. The giant of a man turned around to face me. The fork, the fork had been plunged in his throat. I was saved. The neighbors had heard the roof collapse. They came to my rescue. 2 weeks later, I was back home. The neighbors had chipped in and fixed the roof. I was glad. I was alive. After the customary greetings, the neighbors left and I was alone at last. I heard a little knock. I opened the door and one of my goats pushed me aside and came in. Hey, shoo, get out, get out. Shoo? No, no, no. It's not polite to greet someone who saved your life like that. And by the way, thank you for finding my figurine. It has been quite some while since people worshipped me. And now you will uphold your promise. You will start worshipping me. As above, so below. Quod est in fides, est sicut est superius. I, Morning Star, rise again. Thank you. Very nice Like Gollum. storytelling. Very nice storytelling. Thank you. Very nice declamation. You've kind of acted through your voice, and it's really really nice. So Thank you. thank you so much for sharing that with us. Calling on our next participant, Mr. Rajesh Patnaik. Hi, I'm a dentist by profession. My name is Rajesh, and apart from dentist, I am a part-time paranormal activist also. So I go behind stuff and I try to investigate. And I wasn't like this before because from childhood I was a very scared kind of kid. बहुत ही डरा हुआ सा लड़का था मैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों से डर जाता था. बट बाद में जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं होने लगी जिसने इतना स्ट्रांग बना दिया कि अब इन चीज़ों के पीछे ही मैं जाने लग गया. तो हॉरर मूवीज में वैसे ज़्यादा हॉरर मूवीज मैंने देखे नहीं है, बट उसमें एक मूवी जो मेरे को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस की वो थी गेट आउट. Get Out is an Oscar awarded movie. You should watch that. You cannot call it as a horror, but it's a kind of thriller. Thriller, But yeah. it has an amazing storyline, and which is like unique from most of the horror movies. So over a period of time, ऐसा हुआ कि I got trained to do exorcisms and have seen a lot of cases of exorcisms. तो जिंदगी में क्या एक वक्त था जब मैं आई नेवर यूज्ड टू बिलीव ऑन गॉड. मैं भगवान पे कभी यकीन ही नहीं रखता था. मुझे लगता था कि ये सब किताबी बातें हैं और किताबों से ज़्यादा इनका कोई अस्तित्व नहीं होता. तो एक ऐसा वक्त था मेरी ज़िंदगी में कि मैं बैंगलोर में एक इंटर्न के हिसाब से काम कर रहा था इन अ डेंटल क्लिनिक. मैं और मेरे बॉस, क्योंकि हम लोग अकेले रहते थे तो वी डिड नॉट हैव द रेस्ट्रिक्शन टू गो होम. So we used to sit up to 2 o'clock in the night and work with patients and talk generally. ऐसा होता था. तो एक वक्त ऐसा आया कि एक दिन काम करते करते रात के 2 बज गए. तो मेरे बॉस जिनका नाम था
डॉक्टर सैयद हनीफ। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई राजेश, अभी घर नहीं जाना क्या? अब रात के 2 बज रहे हैं, खाना भी नहीं खाया हमने, तो चलो कुछ खा के घर निकलते हैं। तो रात के 2 बजे जब हम क्लिनिक बंद करके बाहर निकले तो जहन में एक ही जगह आई जहाँ पे हम जा सकते थे। वो थी हमारी मेडिकल कॉलेज के बाहर एक कैंटीन हुआ करती थी जो 24/7 ओपन रहा करती थी। आज भी अगर आप बेंगलोर के टैंडरी रोड वाले एरिया में जाओ तो काफ़ी सारे चाय और बिस्किट की दुकान जो है वो आपको 24 घंटे ओपन मिलेंगे। तो आप जब कभी भी अंदर घुस के आप चाय पी सकते हो। तो मेडिकल कॉलेज के सामने वाली चाय की दुकान थी, तो काफ़ी स्टूडेंट्स जो रात तक पढ़ते थे वो आते थे चाय पीने के लिए, और चाय पी के बात करके वापस हॉस्टल में चले जाते थे। तो हम दोनों उधर गए, बैठे और दो दो कटिंग चाय ऑर्डर की। तो 2 कटिंग चाय जैसे ही सामने आई तो गरम गरम चाय, और ठंड का मौसम था, तो बातें ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ऐसे मौसम में सबसे कॉमन टॉपिक जो निकलता है हमारे बीच में वो अ, हनीफ सर ने निकाला। और उन्होंने पूछा, राजेश, क्या तुम यकीन करते हो कि आत्माएं होती है? जैसे ही मैंने वो सुना और चाय की एक चुस्की ली और मैंने कहा, "हाँ, क्या सर आप भी ऐसे फालतू बात करते हो, आत्माएं नहीं होती। हालांकि कई ऐसे इंसिडेंसेस हैं जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते और साइंस उसके बारे में ढूंढ रहा है, बट जिस चीज का वैज्ञानिक तौर पे किसी कोई एक्सप्लेनेशन ना हो उस चीज को मानना मेरे लिए तो संभव नहीं है।" ऐसे ही बातें करते करते एक ये धीरे धीरे एक आर्ग्यूमेंट में हो गया। हनीफ सर का मानना था कि आत्माएं होती है और मैं स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट कर रहा था कि आत्माएं बिल्कुल नहीं होती। चलते चलते हम मेडिकल कॉलेज के अंदर पहुंच गए, और मेडिकल कॉलेज में एक छोटा सा गार्डन था जहाँ पे बेंचेस हुआ करते थे, जो हमारे कॉलेज टाइम से ही हमारे बहुत फेवरेट जगह हुआ करती थी बैठ के बात करने। तो हम मैंने वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क की और हम गाड़ी के पास ही खड़े रह के इस बारे में चर्चा करने लगे। धीरे धीरे मेरे ध्यान में आया कि ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होने वाली है। मैंने आसमान की ओर देखा तो आसमान एकदम लाल था, इट वॉज ब्लडी रेड। कभी भी खून की बारिश हो सकती थी ऐसा महसूस हो रहा था। अब रात में आमतौर पे अगर आप बादल को देखो तो वो हमेशा लाल नजर आते हैं, और सुबह अगर आप देखो तो वो काले बादल नजर आते हैं। तो रात में, लेकिन उस दिन वो बादल इतने लाल थे कि लग रहा था कि किसी वक्त खून गिर सकता है उसमें से। मैंने सर की तरफ देखा और कहा कि लगता है बारिश होने वाली है, हमें निकलना चाहिए। बट सर अपने ही धुन में थे और वो कुछ अलग अलग बातों में मेरे को उलझा दिया। कुछ देर बाद हवाएं तेज होने लगी और ठंड ने एक ऐसा माहौल बना दिया कि मैं कांपने लग गया। मैंने सर से कहा कि सर अभी तो ठंड भी लग रही है, अब घर चलते हैं, अब बस बहुत हो गया। तो ठीक है, निकलने का जैसे निर्णय लिया और मैं गाड़ी पे बैठा तो इतने में एक एम्बुलेंस अंदर घुसी मेडिकल कॉलेज के। काफी जोर से आवाज करती हुई और तेज चलाता हुआ एम्बुलेंस का ड्राइवर ने उसको सीधा आईसीयू के वार्ड की तरफ लेके गया। जैसे ही देखा तो हनीफ सर ने एम्बुलेंस की तरफ देख के वो एक प्रार्थना करने लगे। वो कहने लगे कि या खुदा, इस मरीज को तुम हमेशा अपनी सुरक्षा देना। तो मैंने हनीफ सर से देख के कहा कि अरे यार, कोई बूढ़ा मरीज होगा तो आप खुदा से उसकी सुरक्षा कैसे मांग सकते हो? और आपने मांग लिया और आपका खुदा उसको दे भी देता है। हनीफ सर ने कहा, तुम खुदा की ताकत को नहीं जानते मेरे बच्चे, शांत रहो और सिर्फ दुआ करो कि वो मरीज बच जाए। मैं अपने मन में हंसता हुआ गाड़ी शुरू ही करने वाला था कि अचानक 12 कुत्ते कहीं से आके हमको घेर लिए। 12 कुत्तों ने हमको एक सर्कुलर पैटर्न में घेरा और आसमान की तरफ देखकर चिल्लाने लगे। एक अजीब सा डर मन में पैदा होने लगा। न जाने अगले मोमेंट क्या होने वाला है। इतने से मेरे पीछे से आवाज आई, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैंने पीछे देखा तो हनीफ सर ने आयातल कुर्सी पढ़ना चालू कर दिया था। और अचानक मेरी आंखें ऊपर की तरफ गई कि अचानक 2 बिजलियां नीचे आई और तीसरी बिजली को लेकर फटाफट ऊपर चली गई। सब कुछ 10 सेकंड में हो गया। मुझे पता नहीं चला ये क्या था। मैं हैरान था, परेशान था। फिर भी जैसे ही कुत्तों में से थोड़ी सी जगह मिली मैंने गाड़ी भगाया और भगा के सीधा थोड़ी दूर गया। 500 मीटर ही गया हूँगा और एक मस्जिद के सामने अचानक मैंने गाड़ी रोकी और देखा कि आसमान साफ है, तारे टिमटिमा रहे हैं, हवा, ठंड जा चुकी है, शरीर में गर्मी वापस आ चुकी है, हवा का नामो निशान नहीं। और पता नहीं कि करीब आधे घंटे से ये क्या हो रहा था जो कि अचानक शांत हो गया।
किसी भी तरह का एक्सप्लेनेशन, किसी भी तरह का साइंस मेरे दिमाग में जन्म ही नहीं ले रहा था ये सोचने के लिए कि क्या हुआ। मैंने हनीफ सर की तरफ मुड़ा और पूछा, सर ये क्या था, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? उन्होंने कहा, बच्चे फरिश्ते आए और आत्मा को लेके ऊपर चले। ये पॉसिबल है? क्या ये मुमकिन था? मुझे समझ में नहीं आया कि इतने में पीछे से एक हाथ मेरे कंधे पे पड़ा और पीछे से आवाज आई, बेटा अंदर चलो, तुमसे बात करना है। देखा तो मस्जिद के मोमिन साहब खड़े थे और मुझे अंदर लेके गए। अपने किसी कबर्ड में से उन्होंने एक पुराना एक शीशी निकाली जिसमें आबे जमजम रखा हुआ था और मेरे ऊपर छिड़का और कहा, तुमने नेचर के एक ऐसे लॉ को देखा है जो कि नेचर का सीक्रेट हुआ होता है और ये सबको परमिशन नहीं होता इसे देखने का, सबको अनुमति नहीं होती है इस चीज को जानने की। और तुमने ये देखा, जानते हो इसकी सजा क्या होती है? खुदा से खुदा से दुआ करो कि तुम्हारी जान आज बख्श दी जाए, वरना इसकी सजा सिर्फ सजाए मौत होती है। काफी देर तक मोमिन साहब के साथ बैठ के मैं फरिश्तों के बारे में समझता रहा कि फरिश्ते होते क्या है, दिखते कैसे हैं, किन्होंने को जन्म दिया, कैसे कुरान में उनकी जिक्र हुई है, कहाँ कहाँ जिक्र हुई है, सब चीज मैंने समझा। और समझने के बाद फिर भी मेरा दिल कहीं ना कहीं इस चीज को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि ये कुछ ऐसी चीज है जो कि मेरी जान ले ले। करीब करीब मैं सब सुनने के बाद मैं उठा और हनीफ सर से बोला कि सर बस बहुत हो गया ये बकवास, अब घर चलते हैं और मेरे को कुछ नहीं सुनना इस बारे में। हनीफ सर ने कहा, सुनो अगर तुमको यकीन नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक काम करो, आज की रात तुम मेरे घर चलो, और अगर तुम मेरे घर चलोगे तो मुझे अच्छा भी लगेगा और तुम्हारी सुरक्षा में मेरे को ऐसे तसल्ली हो जाएगी, मैंने तुम्हारी सुरक्षा में कोई कमी नहीं रखी। मैंने कहा ठीक है, चलते हैं आपके घर। गाड़ी निकाली, जैसे ही मस्जिद से बाहर निकला तो घड़ी की तरफ मेरी आंखें गई तो सुबह के 4:15 हो रहे थे। मैंने कहा अब तो सुबह हो गई है, जहां तक मैंने सुना है आत्मा का प्रकोप सिर्फ रात को रहता है। मैंने गाड़ी निकाली, सीधा चलता रहा तो एक एक कब्रिस्तान के पास गाड़ी बंद पड़ गई मेरी, गाड़ी शुरू ही नहीं हुई। मैं गाड़ी से नीचे उतरा, शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आसमान की तरफ फिर नजर गया कि वो लाल बादल वापस आ चुके थे। आसमान में लाल बादल घूम रहे थे। किसी भी वक्त अब मेरा दिल कह रहा था कि दो बिजली नीचे आएगी और मेरे अंदर से मेरी आत्मा को लेके उतर जाएगी। मैं जमीन पे बैठ गया और कहा, है खुदा, अगर आज मेरी जिंदगी की आखिरी रात है तो मैं मानता हूँ कि तू है और तू है और तू मेरी रक्षा कर रहा है इस वक्त। और मैंने आंखें बंद कर ली। उसी वक्त सामने बने मस्जिद से अजान पड़ी गई। जैसे ही अजान पड़ी गई, लाल बादल धीरे धीरे छटने लगे, आसमान फिर से साफ हो गया और तारे वापस आ गए। ऐसा लगा जैसे खुदा ने अपने बंदों से कहा, अब फरिश्तों से कहा, अब ये मेरा बेटा है, इसे छोड़ दे, जाने दे। उस दिन के बाद से मैंने खुद को भगवान और खुदा के नाम पर, अनगिनत कहानियां हुई मेरे साथ, अनगिनत किस्से हुए जो कभी फुर्सत में हो तो जरूर सुनाऊंगा। और हाँ, ये एक ये एक ट्रू स्टोरी है, एक सत्य कथन है, एक सत्य घटना है। थैंक यू। वाओ, ये कुछ कहने के लिए है नहीं। आई थिंक एक रोंगटे खड़े हो गए हैं। आप एक और अगर किस्सा सुनाना चाहो तो जरूर सुना सकते हो। आई थिंक एवरीबडी हियर वुड बी वेरी ईगर टू लिसन टू समथिंग मोर फ्रॉम योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस। और आप जिस क्षेत्र में काम करते हैं उस क्षेत्र में तो आई थिंक बहुत लोगों की रुचि भी होगी, एटलीस्ट किस्से सुनने में। हिम्मत नहीं होती है उसमें जी उतरने की, लेकिन सुनने की रुचि जरूर रहती है। एक और किस्सा क्यों नहीं और सुना देते आप? ठीक है, एक छोटा सा किस्सा मैं जरूर सुनाऊंगा। मैं मैं जैसे मेरी इंटर्नशिप को खत्म करने वाला था, मैं उस वक्त मेरी पोस्टिंग हुई थी मेडिकल कॉलेज में एज इन द डेंटल वार्ड। तो मेडिकल कॉलेज में क्या होता है कि कभी कभार आपके सर्जरी के केसेस आते हैं तो हमें रात रात भर रुकना पड़ता है उस कॉलेज में फॉर एज अ नाइट ड्यूटी। तो मैं उस वक्त ये घटना हो चुकी थी और मैं भगवान के बारे में और जानने की कोशिश कर रहा था। तो
किसी ने मुझे कहा कि आप बाइबल पढ़िए, तो मैं बाइबल पढ़ना मैंने शुरू किया था। तो आमतौर पे रात में कुछ काम रहता नहीं है, तो मैं बैठ के बाइबल पढ़ रहा था कि उसी वक्त एक पेशेंट की एडमिशन हुई जनरल मेडिसिन वार्ड में, और मेरे जो दोस्त थे उन्होंने आके कहा कि राजेश जल्दी आओ, तुम्हारे टाइप का कुछ आया है। तो ऐसे ही कुछ काम नहीं था, पेशेंट्स भी नहीं थे, तो मैं चला गया देखने के लिए कि कौन है ये पेशेंट। देखा तो एक 18 साल का लड़का जिसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। So he was suffering from COPD, एक ऐसी बीमारी जिसमें आपके लंग्स धीरे धीरे आपको जवाब देते हैं और आप सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो उसको उन्होंने बाईपैप पे रखा था और ही वाज ऑलमोस्ट ऑन द स्टेज ऑफ गोइंग इनटू अ वेंटिलेटर। और डॉक्टर्स उसके मदर और फादर वहाँ पे थे, तो डॉक्टर्स ने उनको सहानुभूति देते हुए कहा कि भाई अब तो हम शायद ही इन्हें बचा सकते हैं, हम इन्हें नहीं ये बहुत मुश्किल है इनको बचाना। तो कहीं न कहीं मेरे दिल में ये चीज़ आ रही थी कि यार काश ये इंसान बच जाए, और बार-बार मेरा दिल एक दुआ पढ़ रहा था इस बात की कि यार भगवान इस बच्चे को बचा दो, क्योंकि इसकी उतनी उम्र नहीं है। 18 साल की उम्र में इतनी भयंकर बीमारी से मरना इज़ नॉट रियली एन एज। तो मैं बस ऐसे सोच ही रहा था। अगले दिन सुबह डॉक्टर सैमुअल आने वाले थे। डॉक्टर सैमुअल सिद्धार्थ जो है वो वेल्लोर में एक बहुत बड़े सर्जन है, तो वो आने वाले थे। तो उनको बुलाया गया था इस केस के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो मैं उस दिन तो वापस लौट आया, लेकिन सुबह जैसे ही मैं रिलीव हो रहा था तो मैंने देखा कि डॉक्टर सैमुअल आए। डॉक्टर सैमुअल की पर्सनैलिटी जो है ना, एक बहुत ही मतलब एनर्जेटिक पर्सनैलिटी है। उनको देख के आपके शरीर में एक अलग तरीके की ऊर्जा आएगी। तो डॉक्टर सैमुअल आए, उन्होंने उस बच्चे को पूरा देखा, परखा और कहा कि नहीं, उन्होंने कहा कि मेडिकल साइंस की तरफ से मैं इसे बचा नहीं सकता। बहुत से बहुत कम डॉक्टर्स होते हैं जो इतना फ्रैंकली बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं मेडिकल साइंस से इनसे बचा नहीं सकता, लेकिन हाँ, मेरे पास एक ऐसी विद्या है, एक ऐसी नॉलेज है, जिसे शायद मैं कोशिश कर सकता हूँ कि इसको मैं बचा लूँ। और बार-बार मेरा खुदा, मेरा भगवान मुझे ये कह रहा है कि मैं इसके लिए प्रार्थना करूँ। तो उन्होंने सारे डॉक्टर्स को इकट्ठा किया और कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं इसके लिए प्रार्थना करूँ, हो सके मेरे प्रार्थना से ये बच जाए। तो चूँकि लड़का मरने वाला था, तो माँ-बाप ने भी कहा कि चलो जो भी हो सकता है मेरे बच्चे को बचाने के लिए आप कीजिए, हम आपको नो ऑब्जेक्शन देते हैं। तो कुछ डॉक्टर्स इसके खिलाफ थे, कुछ इसके उनके साथ थे। तो मैंने अपने सुपरिटेंडेंट से रिक्वेस्ट किया कि सर मैं देखना चाहता हूँ कि ये कैसे होता है, प्लीज़ मुझे वहाँ पे लेके चलिए उस थिएटर में। तो डॉक्टर सैम ने उस लड़के को उसके बिस्तर के साथ ऊपर के कमरे में शिफ्ट करवाया, जहाँ पे उनकी टीम, जो 6 डॉक्टर्स की टीम उस लड़के के चारों तरफ बैठी, और वो खुद उस लड़के के सर के पास बैठ के उन्होंने उस लड़के पे हाथ रखा और प्रार्थना करने लगे, ए खुदा, अगर इस लड़के को किसी भी तरह की शैतानिक शक्ति ने पकड़ा है, तो मैं तुमसे ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम आओ और उसको इस शैतानी शक्ति से अलग करो। करीब-करीब 5 मिनट वो प्रार्थना चलती रही, और उसी वक़्त हमने ये देखा कि लड़के की जो माँ थी वो नीचे गिर गई। उसको साँस लेने में तकलीफ होने लगी। एज़ डॉक्टर्स हमारा पहला चीज़ था कि हम उसको जाए पकड़े और उनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट चालू करें। शायद सिनकोप हुआ हो या फिर बेहोश हुई हो ट्रॉमा की वज़ह से, पर डॉक्टर सैम के स्ट्रिक्ट कमांड थे कि कोई भी उसको नहीं पकड़ेगा। उन्होंने अपने हाथ से लगातार इशारा किया कि कोई भी उसको ना छुए, जो होता है होने दे। और अचानक 2 मिनट में उसकी माँ की आवाज़ जो है वो बदल के एक मर्दानी आवाज़ बन गई। उस मर्दानी आवाज़ में वो कहने लगी कि मैं इस पूरे पूरे खानदान को विनाश कर दूँगा। मैं इस पूरे खानदान को तबाह कर दूँगा। तो डॉक्टर सैम उठे, उन्होंने हाथ में पानी लिया, मुँह से कुछ पढ़ा और उसकी माँ के ऊपर उन्होंने ऐसे छिड़का और कहा, "कौन हो तुम? अपना नाम बताओ।" तो वहाँ से आवाज़ आई, "मैं इरफ़ान हूँ। इस औरत के संबंध मेरे साथ शादी से पहले थे, लेकिन मेरा कत्ल किया गया।
तब से मैं इसके अंदर रहता हूँ और मैं इसके परिवार को जीने नहीं दूंगा, मैं मार दूंगा इसे। डॉक्टर सैम ने तुरंत हाथ में पानी लिया, कहा, इरफान, अगर तुम्हें खुदा का खौफ है, तुमने एक बार भी नमाज पढ़ा है, तो मैं इसी वक्त तुम पे इस पानी को छिड़कता हूँ और कहता हूँ कि निकल जाओ इस शरीर से। 2 मिनट तक वो पानी छिड़कते रहे और उसके बाद वो औरत बेहोश हो गई। पता नहीं था कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस कदर उससे आत्मा निकली नहीं निकली। और करीब-करीब आधे घंटे तक तो डॉक्टर साहब बैठ के वहाँ पे प्रार्थना करते रहे। अचानक हमने पीछे मुड़ा और देखा कि वो लड़का जो एडमिट हुआ था, सांस लेने में तकलीफ थी, बाईपैप के ऊपर था, वो अपने 2 पैरों पे खड़ा है। उसने अपने हाथों से अपना बाईपैप हटाया और कहा कि ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसकी सांस ठीक चल रही थी, उसका पल्स नॉर्मल था, उसके हार्ट बीट नॉर्मल थे, उसका बुखार उतर चुका था। उस दिन एज डॉक्टर्स हमने एक चमत्कार देखा, एक ऐसा किस्सा जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। थैंक यू। Okay, I really don't know what to say because जिंदगी में ऐसे कभी-कभी कुछ एपिसोड्स ऐसे हो जाते हैं जहाँ पे we are हम कितना भी रैशनलाइज कर ले, हम एक साइंटिफिक माइंड अप्लाई करें, हम कुछ और मानने की कोशिश करते हैं, हम कहते हैं कि हम मॉडर्न हैं, ऐसी नहीं होती। लेकिन जब आप एक्सपीरियंस करते हो तो आप समझ जाते हो कि वो रियल होता है। there is like there is black, there is white, like if there is darkness there has to be sunlight, and like that if there is bodies there are bound to be souls. एंड आपने जो दोनों किस्से बताए उससे एक बात जरूर साबित होती है कि जो लोग माने या ना माने, लेकिन जो होती हैं चीजें, कुछ होती हैं, उनका एक्सप्लेनेशन जरूर नहीं होता है, and it's best to accept them as a paranormal space because that's what the word is, paranormal. It's parallel to what we think is normal, and that's what paranormal is. So thank you so much, Rajesh, for sharing that You're welcome. real life experience, because this is not horror, but it's definitely paranormal and it's true. It's true. People need to understand that. Thank you so much. तो मेरा किस्सा भी कुछ ऐसी पैरानॉर्मल स्पेस से है। ऊपर वाला ये कह रहा हो कि ये मेरा बेटा है और इसे कोई छू नहीं सकता। बहुत बार मेरा ये मानना है दैट आई एम गॉड स्पेशल चाइल्ड एंड ही इज ऑलवेज वॉचिंग ओवर मी, ही इज प्रोटेक्टिंग मी। एक ऐसे हमेशा लगता है जैसे कि मेरे आसपास ना एक शील्ड सी बनी हुई है और अगर कुछ नेगेटिव आएगा तो वो वहां से बाउंस ऑफ हो जाएगा बिकॉज देयर समवन प्रोटेक्टिंग मी। कभी कभी उसको आप एक डिफेंस मैकेनिज्म, यस, लाइक एन ऑरा, एज मोनेसिज इज सेइंग इन द चैट। तो एक बार यूं हुआ कि मैं एक ऑफिस में थी और उन दौरान मैं कुछ भगवत गीता और ताओ ते चिंग लाओ त्से की जो किताबें हैं उन किताबों में काम कर रही थी। सो professionally I work a lot with different kind of content, and I also work as an editor for books and in that space with all of that kind of work as well. तो उस दौरान मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी जिसमें हम भगवत गीता और ताओ ते चिंग लाओ त्से वगैरह की स्टडी कर रहे थे। तो जब आप ऐसे लिटरेचर पे भी काम करते हो ना, उनकी ऊर्जाएं असीमित होती हैं। मतलब वो कहने के लिए किताब हो सकता है, ग्रंथ हो सकता है, लेकिन आई थिंक देयर इज अ वेरी बिग रीजन व्हाई these spiritual books are so revered, why people feel कि घर में भगवत गीता होनी ही चाहिए, या some ऐसी जो धारणाएं होती हैं कि ये किताबें होनी चाहिए। कहने को किताबें हैं लेकिन वो ऊर्जा का एक बहुत ही बड़ा स्रोत होती हैं। तो उस दौरान मैं थोड़ी सी परेशान सी थी कुछ चीजों को लेकर अपनी पर्सनल लाइफ में। और ऐसा होता था कि मैं जभी भी उस दिन मैं जिस सार पे काम कर रही होती थी, ऐसा लगता था कि उस सार में मेरे मन के उस दिन के प्रश्न का उत्तर मिल रहा है, जो काफी अचंभित लगा मुझे वो चीज कि एज इफ द बुक इज टॉकिंग टू मी जैसे।
तो ऐसे ही मैं काम करने के बीच में एक ब्रेक लेने के लिए ऑफिस से नीचे उतरी और वो लेन में वॉक करने गई। मैंने कहा नुक्कड़ पे एक चाय वाला है, ऑफिस में बैठ के एक मशीन वाली चाय नहीं पीती हूँ, एक ताजी हवा में वॉक लेके ना, लाइक जस्ट काइंड ऑफ क्लियर माई हेड। तो आई वेंट। नाउ आई एम नॉट अ पर्सन हु वर्शिप्स आइडल्स। मेरे लिए मंदिर या कोई प्रेयर की जगह पे जाके प्रार्थना करना जरूरी नहीं है। आप दिल से जब कुछ अच्छा सोच लो या याद कर लो तो वो भी प्रार्थना होती है। लेकिन फिर भी शिव जी इज समथिंग जो, वो जो उनका एक कैरेक्टर है, आप उन्हें भगवान बोलो या उन्हें माइथोलॉजिकल कैरेक्टर समझो, जो भी समझो, बट उनका एक प्रभाव हमेशा एक मुझ पे रहा है। सो समटाइम्स लाइक अगर कुछ मन में चल रहा हो और कुछ सोच में अगर आप आंख बंद कर लो तो एक छवि सी अचानक आने लगती है सामने। तो अक्सर मेरे लिए वो शिवजी हो जाता है और फिर जैसे जवाब आ रहे हो वैसी वाली फीलिंग आती है। तो उस दिन मैं जब रास्ते पे चल रही थी, ओ गॉड, मनोज यू आर वेयरिंग अ शिवजी टी शर्ट। वाओ। चलो, सी, आई एम टेलिंग एन एपिसोड अबाउट हिम एंड ही इज हियर। तो मैं रास्ते में चल रही थी एंड चाय वाले के वहां जा रही थी। तो मैं वहां पे रुकी एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं सिर्फ 20 रुपए लेकर गई थी कि एक कटिंग चाय के साथ अगर मन किया तो बन मस्का, जो तकरीबन अपना 20 रुपए तक में आ जाता है। वॉलेट नहीं, फोन नहीं, कुछ नहीं, बिकॉज आई वॉन्टेड लाइक 15-20 मिनट्स ऑफ साइलेंस एंड अलोन टाइम। मैं चलती गई, नुक्कड़ पे पहुंची, मैं चाय पी रही थी। एक बंदा आया, आप मानेंगे नहीं, जो शिवजी का वो जटाधारी वो विभूति वगैरह लगाई हुई जो उनका जो स्वरूप होता है ना, ये बंदा वैसा दिख रहा था। एक पल अगर सोचो तो यूं लगे कि शायद नाटक कंपनी से रिहर्सल करते हुए आ गया होगा वेशभूषा में। बट ही वॉज एक्चुअली वन ऑफ दोज सेजेस, ये बोलो, या जो जो दरवेश होते हैं या जो वो लोग होते हैं जो रास्ते पे भिक्षा मांगते हुए जिंदगी निकालते हैं। उनका कोई घर नहीं होता, ठिकाना नहीं होता, नौकरी नहीं होती। अघोरी जैसे दिखते हैं बट एकदम अघोरी भी नहीं थे। ही वॉज वेरी अघोरी का ना एक अलग ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो जाता है। आई एम काइंड ऑफ ऑल्सो रिप्लाइंग टू मोनोसिस जिन्होंने चैट पे अघोरी का रेफरेंस किया है। ये थे ना, इनकी एक ऊर्जा थी, शीतलता थी, एक पॉजिटिव वाइब थी कि अघोरी को कभी कभी देखते हैं तो एक हल्का डर भी लगता है, लाइक यू वांट टू बी अ लिटिल केयरफुल। बट ही हैड अ वेरी एफेबल वाइब अबाउट हिम। लाइक उन्होंने एक मुस्करा दिया तो ऐसा लगा कि कोई बुजुर्ग आपसे कोई बात करने आया है। और आए और ऐसे मेरे कंधे पे उन्होंने टैप किया और कहा कि बेटा चाय पिलाओगे? सो आई वाज लाइक जी जरूर। एंड आई रियलाइज्ड आई डिडंट हैव इनफ मनी फॉर 2 टीज। तो मैंने सिर्फ उनको मैंने चाय बोली और वो चाय मैंने सोचा मैं उनको दे दूंगी। वी वर वेटिंग। तो ही इज लाइक यहीं रहती हो? तो मैंने कहा नहीं, पास में काम करती हूँ। एंड ही इज लाइक अच्छा। एंड आई डोंट नो द वे ही वाज लुकिंग एट मी, कुछ था तो मैं उनसे पूछा, मैंने कहा बाबा कुछ कहना चाह रहे हो? तो बोला तू पाक है। मैं सिर्फ स्माइल किया। पाक इज यूजुअली प्योर, लाइक I just smiled. I said, "जी, thank you." And he's like, आशीर्वाद दूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है तू चिंतित है। आशीर्वाद दे रहा हूँ तुझे, जो तू मन में तेरे चल रहा है वो ठीक हो जाएगा। एंड आई वॉज अ लिटिल सरप्राइज कि मतलब यू नो कैसे उनको पता चल रहा है, मैं ना उनसे बात कर रही हूँ ना कुछ। एंड आई सेड अच्छा ठीक है, थैंक यू। आई स्माइल्ड। आई थोड़ी आंख में एक नमी सी भी आई, बिकॉज इट वाज एन ओवरवेलमिंग फीलिंग ऑल्सो। एंड मैंने पलट कर मैंने चाय उन्हें दिया तो बोलते हैं मुझे नहीं पीना, तू पी ले। मैंने कहा पर आपने मांगी थी। बोला तू अपनी चाय मुझे दे रही है और मेरी प्यास बुझ गई तेरी मुस्कान देख के। तो आई वाज लाइक ओके। तो ही इज लाइक पी ले, मेरा प्रसाद समझ के पी ले। आई लाइक ठीक है, मैंने पी लिया। एंड आई ही इज लाइक
सिंह तू किस तरफ जा रही है? I said इस तरफ. He's like चल मैं भी वहीं जा रहा हूँ, साथ चलता हूँ. I like okay. I walked. I was nearing my office and he blessed me and all. And उनके पास वो typical धूप की जो धानी वो जो होती है ना, वो थी. तो उन्होंने ऐसे धूप किया. यूजुअली ना ये धूप वगैरह से मेरी इमिडिएटली आंखें थोड़ी इरिटेट होती है, छींक वीक आती है. But there was something very pleasant about this. And I was like, Baba, सेवकी लेकर जाओ, because usually ऐसे बोलते हैं. मनोज जी, we got your ping, we will reply to you. Yeah. Usually अगर कोई ऐसा होता है तो सेवकी देते हैं, उन्हें खाली हाथ कभी नहीं भेजना चाहिए, ऐसा कहते हैं, because it's like an exchange of energy, and an exchange of energy has to be complete. So either you give energy in exchange, or you give a coin, or you give something, but you have to complete that exchange. So I said, आप रुकिए, मैं 1 मिनट में ऊपर जाके आती हूँ. So he was like, मुझे कुछ नहीं चाहिए. I said, but आप, he's like, तेरा मन शांत हो गया ना? मैंने कहा हाँ हो गया. And he was like कि मुझे फिर कुछ नहीं चाहिए. And a colleague of mine just happened to come, जो शायद उस वक्त ऊपर जा रहे थे. तो मैंने कहा मुझे ऊपर भी जाने की जरूरत नहीं है. मैंने उनको बोला, मैं कहा do you have $10? So he's like हाँ. And मैं उनसे लेने गई और मैं जब पलटी वो नहीं थे. एंड वो लेन थोड़ी लंबी थी, तो अगर वो चलना शुरू किए हों तो वो दिख जाते, बट वो कहीं नहीं दिखे. एंड दिस वाज अंधेरी वेस्ट मेन लिंक रोड. ओके, इट वाजंट सम छोटा सुमसान गली जहाँ पे छोटी छोटी गलियां निकल रही हो या कुछ, क्योंकि मेरी बिल्डिंग मेन रोड को लग के थी. तो चाय पीने के लिए नुक्कड़ में से अंदर जाना जरूरी था, अंदर के नुक्कड़ पे. पर ऑफिस के लिए जहाँ हम खड़े थे वो मेन रोड था. He was not on the main road. He was nowhere. And it literally felt like, अभी मैं बोल रही हूँ तो I'm again getting that feeling, but ऐसे लगा कि जैसे शिवजी खुद आकर ना एक आशीर्वाद देकर चले गए हों, और माथे पे उनके राख वाला तिलक था मेरे. I don't know, जब उन्होंने ऐसे आशीर्वाद देने के लिए, he had not actually touched me, but the राख वाला तिलक was there. And I'm like, I don't know. I'm just gonna go with that. I'm God's special child. He knew कि मन व्याकुल है. He's come, blessed me, and he's gone. And yeah, and this is something that I had experienced. मनोज जी पिंक कर रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे. नमस्कार जी, सभी लोगों को एकदम नमस्कार. तो मेरे साथ में भी ऐसी एक घटना घटी थी कि मेरे बगल में ही एक मंदिर है, ये टी सीरीज का, मैं जू पे रहता हूँ करके, यहाँ पर टी सीरीज मंदिर बोलते हैं हमारे इधर जू पे. तो वो मंदिर में मैं काफी सालों से रेगुलर जा रहा हूँ करके, मतलब शिव जी का मंदिर है जी, मेन शिव जी की प्रतिमा है, और वहां पर मैं रेगुलर जाता हूँ करके वहां पर. मतलब तो महाशिवरात्रि का दिन था और मेरे मन, मतलब मैं ऑफिस की तरफ सुबह निकल चला था करके, मतलब मैंने ये नहीं किया था कि भाई ठीक है मंदिर होके मुझे जाना है. तो वहां से जब गुजरा तो मैं सोचा कि चलो 5-7-10 मिनट अपने मंदिर होते हुए चले, आज भगवान का दिन है, शिवरात्रि है, तो अपने वहां से होते हुए चलें. तो जैसे ही मैं उस मंदिर की तरफ और बढ़ा, मेरे घर के एकदम बगल में ही है, गाड़ी में ड्राइवर था मेरे संग में, तो मैंने देखा तो बहुत बड़ी भीड़, लाइन लगी थी, कतार लगी थी करके वहां पर. मैं उतरा, वहां तक गया, मैं बोला यार अभी मैं अगर ये कतार में मैं लग गया तो मुझे ऑफिस फैक्ट्री वगैरह जाने में मुझे लेट हो जाएगा करके, बेसिकली करके उसमें. तो मैं इस दरवाजे से नहीं उस दरवाजे से पंडित जी से बात किया कि भाई मैं अगर मैं दर्शन कर सकता हूँ तो ऐसी दूर से, या तो बोले सर बिल्कुल भी आपको अलाउड नहीं है करके, मतलब आपको लाइन में ही खड़ा रहना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं आपको अगर अंदर जाना हो तो करके उसमें. तो फिर मैंने बोला चलो आज के दिन ऐसा है कि अपने शिव जी के दर्शन नहीं कर पाएंगे, कभी किसी और दिन सही करके, मतलब उसमें. तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं वहां से निकला, गाड़ी के अंदर जैसे ही बैठा मेरे दोस्त का फोन आ गया करके, मतलब तो दोस्त का फोन देखा, सुनील करके. मैंने बोला यार ये कैसे, तो मैंने कॉल उठाया तो बोला अरे मनोज क्या कर रहा है करके, मंदिर के बाहर आजा, यहाँ आजा, लाइन के अंदर अंदर ही आजा करके उसमें. बोला कहाँ है, बोला लाइन के अंदर मैं पहले मैं खड़ा हूँ, मैं देखा कि तुम काफी देर से चेष्टा कर रहे हो अंदर आने की करके उसमें, और वहां पर मतलब अंदर आ जाओ. तो मैंने देखा तो वो लाइन के अंदर ही आगे आगे खड़ा था, तो उसने मुझे हाथ दिया और मैं उसके साथ में संग में हो गया. मतलब बेसिकली मैंने उसको यही बोला कि ये तेरे वजह से, पता नहीं कैसा है, मैंने भगवान को बोला होगा मन में या जो भी है करके कि भाई मुझे दर्शन करने थे, और भगवान ने किस रूप के अंदर अभी क्या करवाया मुझे भी इसका ज्ञान नहीं. तो ये बार कई बार ऐसा होता है अपने साथ में, अपने को लगता है कि भाई वो अपने साथ नहीं है,
लेकिन अगर दिल से आप उसे मांगो ना, दिल से, तो वो आपकी सुनता है करके। उसमें इसमें कोई संदेह वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अभी जैसे अपने है कि भाई चारों तरफ अपने हवा है, अभी हवा आपने किसी ने देखा तो है नहीं करके उसमें, फिर भी अपने मानते हैं कि हवा 100% है। तो उसी तरह ये जो शक्तियां हैं, जो नेचर बनाया है, सारी इसकी रचना की है, आपको हमको पूरा नेचर बना है। कोई तो होगा ऑर्गेनाइजेशन, एक छोटा सा कंपनी, छोटी सी फर्म, छोटा सा घर चलाने के लिए भी उसके ऊपर उसका कोई होना चाहिए करके, होता है तभी ये वो चलता है ऑर्गेनाइजेशन करके उसमें, उसके बिना चलना असंभव है। तो मेरा तो ये मानना है कि भाई 100% भगवान है, उसमें कोई भी दो राह नहीं है। और ये आत्मा जो चीजें ये सब अपने बोलते हैं, ये निसंदेह है करके, निसंदेह, उसमें कोई भी किंतु और परंतु कहीं नहीं है करके मतलब। और जैसे ये अपने, मैं ये बुद्धा भी देखा था, बुद्धा करके अपने जो नेटफ्लिक्स में सीरीज आती है बुद्धा की, तो ये मैंने पूरी बुद्धा की सीरीज देखी थी। तो आप विश्वास नहीं करेंगी, जब तक अपने बुद्धा की जो सीरीज देखते हैं, आपके मन में विचार मतलब इतने शुद्ध हो जाते हैं कि जिसका कोई कोई प्रकार का आपके स्ट्रेस नहीं, कोई कोई ग्लानि नहीं, कोई दुख नहीं, कर रहा हूं मैं, कर क्या रहा हूं करके, मतलब किस चीज के मैं पीछे पागल हूँ। तो ये सब ये चीजें, जैसे आपने कहा कि भाई भगवत गीता घर पे रहती है तो उसका फर्क पड़ता है, उसके ऑरा का फर्क पड़ता है। तो ये 100% मैं विश्वास करता हूँ करके मतलब, यानी आप अच्छी अच्छी अगर भगवान के ये सब ये देखते हैं, ये पढ़ते हैं, तो उससे आपको शक्तियां मिलती है करके, जिसका आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका रूप 110% है, विदाउट फेल करके, नो डाउट अबाउट इट। आपको संदेह नहीं करना है करके मतलब, उस पर संदेह जहां आपने मतलब भगवान की और आपकी जो डोर है वो केवल विश्वास पे टिकी हुई है, और जहां विश्वास करना आपने संदेह करना चालू कर दिया, वो डोर टूट जाएगी करके मतलब। बस यही कहना चाहूंगा जी, बस। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। थैंक यू। क्योंकि ये बात जरूर सच है कि आप मूर्ति को भगवान मानो हाँ जी, तो वो भगवान, वरना पत्थर। पत्थर है। तो जहाँ पूरा फर्क जो आ जाता है ना, वो उस विश्वास का आ जाता है। And like you rightly said, if you believe, then it is that faith, it is that belief that actually makes certain things happen. First incident that I experienced was, I think, must have been just 7 years old. And let me give you a small background to this. You see, I grew up in Madras, though I was born in Mumbai. I grew up in Madras, Chennai, the present day Chennai. And I used to live in a place where the entire household was divided on different levels. And our bedroom, or whatever, the family room, whatever you say, it was up on the third floor on the terrace. It's a massive terrace. And more than 45% of the terrace was taken up to make a large room. And the room was such that around 70% was a brick wall. And then the rest of the 30% on the roof was of only asbestos sheets. And my father, his job was such, he's into the sugar trade, and he would travel for more than 18 to 20 days. So most of the time it was only mama and me, like only the two of us to fend for each other. So to cut the slack, see, this is the kind of room where there are windows everywhere. There's a door, and there are about 5 windows all around. So we used to leave it open, and mother and daughter would sleep on a mattress down, and I would literally tuck into her tummy, like she'd hold me like a little doll, and we would sleep. So what happened is, when my father was, his phone call had come just 2 days back telling that this time he's not coming on that XYZ date, and he'll be coming a week later. So that would be almost 25, 28 days since I would see my father. So I was very upset about it. And mama was telling, no, don't worry, Papa will call again. He said if at work gets over, he'll come again, 2 days earlier. She was trying to console me. And that night, I distinctly remember, I went away very, not crying, but like, missing my father so much, and I went off to sleep. And I don't know the time, but I distinctly remember the window opposite me was open. Okay. And the window behind me were open, both the windows. And we were sleeping, and we used to keep a small bulb at the corner of the room on, a small 0-volt bulb. And then I don't know what happened. Mama was sleeping. I distinctly remember I was tucked into her stomach. I just looked up and I saw my father standing in front of me, smiling and telling, you were thinking of me, na? You wanted me to come early, no? So, see, I've come now. And the voice is the same, the face is the same. My father looks like a British era naval officer, multicolored eyes, and very handsome fellow. This is not a prejudiced doctor talking about a father. Okay, this is really my father who used to look like that. And then I started. He said, "Come," and they called me Raju. My nickname is Raju at home. He said, "Come, come, Babu, Raju, come."
So I started to get up, and Mama, because I stirred, she woke up and she held me tight. I don't know what she saw. She said, "No, you're not going. Don't go. That's not Papa." I said, "Why, Mama? See, he told that he came." And in that, even in that little age, I remember I must be around 7. I said, "How did you come when it is so dark? What train did you catch? You know, how did you come in? The door is closed. We didn't open the door, Papa. How did you come in?" So he says, "No, beta, see this window's open. I came from here. Like, it's okay. I didn't want to disturb both of you. You're sleeping. Come, come, out, Raja, out, come, come." So mommy's telling, "No, don't go. This is not Papa." And I was, one side was petrified, one side, and that moment of happiness that I felt, gone, poof. And see, even now while I'm narrating, my hair standing up at the edges, real goosebumps I'm getting. And she pulled me tight to her stomach, and always, we used to sleep with a iron rod and a very large tailor's scissors, with which you can cut almost 2-3 meters of cloth when they're folded in multiple folds. So that scissors she just took and she says, look down, Raju, look down, see the feet. They're turned inside. And then I noticed, extremely hairy. I mean, all this I had later on read in some things and, heard from people. But that time I saw hairy back turned feet. She said, "Raju, say Om Namah Shivaya." I had to say, both of us started loudly chanting, really loud, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. She took that scissors and she flung it. And the moment, and then that slight smile, was very eerie. See, I mean, like, literally, I'm getting goosebumps even while I'm narrating. It is a different smile. It's a different glint in his eyes. That I instinctively, even that as a small child, I knew, no, this is not my father. And I started even chanting louder, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. And Mama was telling some, I think, Yamnashtak mantra, I don't know, whatever that was. And then she just took the scissors and flung it. As soon as the, hello, sorry, Yes, yes, something came yes. in front of my screen. Anyway, can you see me? Can you hear me? Yes, yes, yes. Go on. Okay. So Mama just took that scissors, that large tailor's scissors, and flung it on him. And poof, literally a large flame out of the window. And like, she too was shaken, I too was shaken. I started screaming, crying. She says, "No, don't worry, Raju. Nothing will happen. But he's gone. He's gone. Don't worry." And whatever that was, that is not Papa. Now you understand that is not Papa. So what we did is we closed most of the windows. We left on the other opposite side of the room window, far away window open. And what she did is she took the Bhagavad, which we usually read, many times we used to read the Bhagavad Katha. She lit a small lamp and she put some camphor in that. And she says, Mama says, "See, this glow is there, this God's book is there, nothing is going to happen. Sleep." But I remember I wouldn't sleep. Every now and then I was scared to open my eyes. At the same time, I knew because Mummy is there, nothing would happen. And it's like how, little children are so innocent. Even when they see a tiger or a lion, they think because Mama is holding me, the lion will not bite me, or, it won't eat me. Least knowing that the lion can eat even the mother. So it was that kind of a security of because she was there. And another incident is, cut that. That was around 7 when I was a child. This is, I think the year was 80, 84. 84 when my firstborn was to be born. I was, I think, 6 months pregnant. Between 6 and 7 months pregnant. And my father-in-law had passed away, and we had this ritual in our house that every month on that particular date, the tithi, the Gujarati, according to the Gujarati calendar, the tithi that is there, we would call a Brahmin to have food in our house, and we would give him a pair of new clothes from my father-in-law's cupboard, and then some cash and some food provisions, basically provisions. But this was, I think, the second or the third month. So that's why I'm not very sure, like, what term of the pregnancy was. Anyway, that is beside the point. The thing is, my firstborn was to be born. My father-in-law had passed away exactly when I finished the 5th month, when I was carrying my first child. And then I went out searching, I think the second or the third month. It was around 11:30. Usually the Brahman comes at 10 in the morning. I would have a bath by 5:30 in the morning, clean the entire kitchen and cook food. It's almost like, because you're giving it to the person who passed away. And, the Brahman represents the person who has gone away from your family. So everything has to be extra clean, ultra clean. As it is, it's clean, but then you have to be very careful. So I would always have a bath and do all this. My food would be ready by 9:30 or 10 because the Brahman would come in between 10 and 10:30. 10:15, 10:20, 10:30, 10:45. I said, no, this cannot be. I walked out of the house, went down. We used to live on the second floor. I went all the way, more than I must have walked almost a kilometer.
searching for some elderly gentleman, because this was my father-in-law. I had to give it to a male person. Nobody, and I don't know what. It was so late that even the vendors on the way had shut their shops. There's nobody. And then there's one Lakshminarayan Mandir. I went to that lane, and sometimes there would be people sitting outside the temple door. That day there was nobody. And then when I turned around, I came around the corner. I was just going back. So it would take me another 20 minutes to walk back to my house. And somebody with a, those paint boxes which you have with a thick wire tied around it, old paint box, a very thick wire, long wire, which usually people wear it in their neck, and one dirty sack, not a sack, I think it was kind of a large bag, which must have been some light color, which must have seen better days, old paint. He was wearing the dabba in his neck, the paint box tied with a large wire in his neck. He just took it and my back was towards him. He knocked on my shoulder with the dabba. I turned around. So he says, "Beta, तू मुझे ढूंढने आई थी ना? हाँ चलो चलो." क्या है? हाँ वो तेरा वो ससुर का है ना, अतिथि है ना, खाना खाने का है ना, चलो चलो. So first and foremost, I was shocked that I was looking at that footpath outside, few steps away of the temple, and the large door is closed. There was nobody. Where did this old man appear from? And I don't know. There was just, I didn't know the stranger, yet there was something very familiar about this old person. That person walked with me, and when the person was walking, the steps were quite firm and quick for the so-called uh, old age, I would say. I don't know. That person was slightly bent and having a stick, and basically mainly dhoti and a slightly extremely disheveled kurta. And on the way, he was telling how he had 4 sons and nobody cared for him, and that he had been driven out of his house, and his entire Ram Kahani. And I was just listening to it sympathetically because I couldn't do anything. I was just happy that I found somebody whom I can give food, because I was in that kind of a zone. Ki ab kya hoga, like I have to reach this. I'd given to the cow, I'd given to the crow, I'd given to the dog. Done. All that was done. I came home. I said, "You come." I said, "No, I can't climb the 2 stories. Better, you go up and bring the food." So I brought the food. I brought the clothes. I put it in little containers. I said, "You take it like this." All there was some, there was a sweet, there was a fashion. The entire meal was there. Some 7, 8 things were made. So I put them in different containers quickly. I took them down, and that I took some cash. I went to give him. I said, "Baba, take this." And I don't know why. Instinctively, I called him Baba. I mean, who calls a roadside person Baba or Dada or anything? So this was, again, I couldn't understand what this, and it is something beyond me. There's something that's making me do this, address him such, listen to his story. This connect is something beyond this, not from this world. It's obviously not of this level of what we see around us as this superficial world. And then he said, "No, beta, I can't. You're very generous. So you're very kind-hearted. God bless you for that. You thought about all this and gave me. But see, I have no other way. I have only this, and I can't carry all this." He said, "Put everything in one dabba." I said, "But how can you eat everything from the one container? One container." So anyway, he said, "No, you give it to me." So he took it, and in our house, where my home was located, there's a very large compound. You have to walk through that, and then you have to come back. So I walked him to the outer gate, and he insisted that don't come with me. I said, "No, it's okay, come. I'll carry these things." So I carried his little bag. And then maybe 5, 7 minutes only it takes to reach that gate. I left him there, and just about 10, 12 steps before the gate, he says, "You don't come out of the gate. You go. You go, I'll go." He insisted. So he was very persistent. So I said, "Maybe take a chalo, it's an elderly person. Why should we, unnecessarily?" Anyway, I've given him what I wanted. He's taken and he's gone. It's okay, let him go. And before I could take a left turn to come towards my building, I just turned back. I don't know why. He's not there. That person is not there. And it is impossible for such a frail old person to cut that distance, to walk away, finish those distance before I could reach and turn. It's impossible. It's impossible. It's quite a long, pathway for him to just walk off and not be there. So these are the two real experiences I have seen. Apart from certain kind of things that where I meet an absolute stranger, but I know that the stranger will say such a thing, and that person says that, or this person will do such a thing. I don't know that person at all for the first time, and that person will do it. This is, I don't know whether it may not be clairvoyance. I don't know what exactly the label is, premonition.
There's more than 6. If there's a seventh sense, I don't know what this is, but it is. I feel it is, a very that the mute animals, they have this more than an instinct. More than an instinct, it is. It's a samavesh. It's a collection of everything. Their intelligence, their down the years, what their parents, the mother cow or the mother elephant or whatever the animal has passed on to them, it's part of their DNA. So there's something I'm not able to put a finger on it, but it is nature's gift to me. I don't know. So that was that, guys. It was, I think, really quite goosebump inducing. And the fact that this is not fiction, but real life experiences real. is even more goosebump inducing. So thank you for sharing that with us. Thank you so very much.